Hey guys, welcome to my channel Doctorate Diaries, and this video is very informative for Himachal Pradesh medical TZT examination, and the section is zoology section. And for the zoology section, the worst phylum is phylum Protista. So to continue this video, I firstly introduce myself. My name is Sahil Sharma and I am also from Himachal Pradesh. I completed my masters in zoology from Himachal Pradesh University, and currently I am doing my PhD from NIT Jalandhar in the stream environmental engineering. Now the my channel name previously Sahil Sharma Jobs Notifications, and currently from starting this video I changed my channel name Doctorate Diaries. Now start from this मैं बता दूं आपको सिंपली जितना आपका टीजीटी मेडिकल में जो भी है वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम जोलॉजी सेक्शन आल्सो द बॉटनी सेक्शन आल्सो द केमिस्ट्री सेक्शन. From starting with zoology section, the zoology section, the first phylum is phylum Protista. In the phylum Protista, from starting this video, I simply tell you this PDF. I provided this PDF in the Telegram channel. The link is provided in your description box. This is the phylum Protista, and here you see the general characters, some diseases, also the photosynthetic protista, dinoflagellates, diatoms, and many more. Okay, check this PDF, link in the description box. Now starting from this PPT, the first one, general characteristics. Here you see the first one is cell structure. The cell structure is unicellular, and if we talk about nutrition mode, it is autotrophic as well as heterotropics, or maybe the both mixotropics. I cannot explain these terms. I think you know these simple terms. Now the classifications: animals like protists, maybe protozoans; plants like protists, algae. Here you see algae. If you think about algae is is the different phylum, but no. Also some algae may be a brown algae, few physi under this protist category. Fungi like protist. Also you think fungi is the different phyla. Although fungi is the different phyla, but some fungi like egg fungi, slime mold also in the category of protists. Now if we talk about locomotion and reproduction, the locomotion is through pseudopodia, the finger like projections, and also the cilia and flagella. Okay, now the next is apomorphic characters. So what are the apomorphic characters? एपोमॉर्फिक करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो कि खुद डेवलप किए होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में विदाउट एनी एंसेस्ट्रल इन्वायरमेंट. एंसेस्टर से उसने कुछ नहीं लिया है, खुद डेवलप किए हैं, उनको बोलते हैं एपोमॉर्फिक करेक्टर. अब इनके पास क्या क्या एपोमॉर्फिक करेक्टर हैं और एंसेस्टर कौन थे? तो इनके एंसेस्टर आएंगे दो, बैक्टीरिया एंड आर्किया. मोस्ट प्रोबेबली आर्किया आएगा. ओके, आई थिंक बैक्टीरिया और आर्किया बारे में आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ. स्टार्टिंग फाइलम प्रोटोस्टा. Now the origin of the flexible cell wall, the loose cell wall. In the both case, in the bacteria and archaea, cell wall is present. But in the case of protist, cell wall is absent. So it is a apomorphic character. Nuclear envelope यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन आ चुकी है, यानी कंपार्टमेंट बन चुके हैं. इसका मतलब क्या है? यूकैरियोट बन चुका है. जीनोम कैसा? लीनियर है, हिस्टोन आ चुकी है. ये सभी कैरेक्टर किसके हैं? एक यूकैरियोटिक सेल के हैं. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सेक्सुअल में आता है सिंगेमी और असेक्सुअल में आता है बाइनरी फिजन. एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अनफेवरेबल कंडीशन में कई बार सिस्ट बन जाता है, जिसको हम एक डोरमेंट कंडीशन मानते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं सीधे बोल देता हूँ. अब ये जो पूरा जो आपको एक क्लेड दिख रहा है, एक जो पूरा फाइला आपको दिख रहा है, ये है पूरे एनिमल्स किंगडम का, ठीक है, जिसमें प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं. इस बर्ड में जो भी चीज़ है वो सब कुछ इसमें कवर की गई है, ठीक है. यानी पूरा यूकैरियोटिक सिस्टम में ये है. अब इस पूरे यूकैरियोटिक सिस्टम में हमने क्या पढ़ना आज? प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के अंडर कौन कौन से आएंगे? जो 3 एरो लगे हुए हैं. एक में लगा है एमेबोजोन यानी अमीबा वगैरह, दूसरे में लगा है एक्सकेवेट, और तीसरे में लगा है सार्कलेड. तो यही 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, बाकी सब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब होल है, पूरा है. हमें तो बस आज प्रोटिस्टे पढ़ना है. देखो ये जो आपको यूनिकोंटा दिख रहा है, ओके,
अगर मैं यूनिकोंटा की बात करता हूँ तो इसको कई बार ओपिस्थोकोंटा भी बोलते हैं। ओपिस्थोकोंटा में कोनेकोफ्लेजिलेट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है और एमीबोजोन्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कोनेकोफ्लेजिलेट्स की और एनिमल्स की, तो कोनेकोफ्लेजिलेट्स मोस्ट प्रोबेबली बात करता हूँ तो पोरफिरन्स होते हैं। पोरिफेरा पढ़ा होगा आई थिंक आपने, जिसमें पोरिफेरा में आपने पढ़े होंगे बहुत सारे पोरफिरन्स होते हैं, समुद्र में होते हैं, समुद्र के नीचे होते हैं, ठीक है। ओके, तो कोनेकोफ्लेजिलेट्स बोलते हैं उनको। तो उनका एनिमल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सिस्टर ग्रुप आप दिख रहे हो यहाँ पर। फंजाई भी इसके अंदर आती है और एमीबोजोन्स पे आते हैं, बट हमें क्या पढ़ना है, ओनली एमीबोजोन्स। आफ्टर दैट देखो एक्सकेवेट, इसमें आएंगे डिप्लोमोनोड्स एंड यूग्लिनोजोआ, हम पढ़ेंगे आगे, अभी तक आप इस टेबल में देखो। तीसरा सार्कलेड, सार में एस का मतलब होता है स्ट्रेमिनोफाइल्स, ए का मतलब होता है एल्बोलिट्स और आर का मतलब राइजेरियंस। उसके बाद आर्किप्सिडा भी है, बट आर्किप्लास्टिडा में आता है रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे और प्लांट्स। ग्रीन एल्गे और जो प्लांट्स होते हैं इनको एक कॉमन ग्रुप है जिसको बोलते हैं ग्लूकोफाइट्स। थोड़ा आई थिंक यहाँ यहाँ आएगा, ये एरो गलत लगा है, ठीक है। ओके, तो ये तो सारा पूरा यूकैरियोट्स का है। हमने पढ़ना है एमीबोजोन्स, एक्सकेवेट और सार्कलेड, बस रेस्ट नहीं पढ़ना है, रेस्ट हम आगे पढ़ेंगे जब नेक्स्ट फाइल आते जाएंगे। पहला क्या है, एमीबोजोन्स। एमीबोजोन्स में आता है एमीबोजोआ, ठीक है, जो कि इमोर्टल सेल हम मानते हैं। स्यूडोपोडिया की तरह उसकी लोकोमोशन है। एम्यूनेटिक डायसेंट्री करती है ह्यूमंस के अंदर। एंटामेबा हिस्टोरेटिका, और सेल बॉल नहीं होती है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा करैक्टर नहीं है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सार्कलेड की। तो सार्कलेड में पहले हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेमिनोफाइल्स। स्ट्रेमिनोफाइल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस से बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेमिनोफाइल्स में आते क्या क्या हैं, तो स्ट्रेमिनोफाइल्स में ये चीज़ें आती हैं, ये आपको याद करनी है। आप अब याद क्या करना है, ये पहला डाइटम्स। अब डाइटम्स आपने वर्ड सुना होगा, डाइटम्स होते हैं वो स्ट्रेमिनोफाइल्स के अंडर आते हैं। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है ओशन का, ये क्वेश्चन बन सकता है। सेल वॉल इनकी बनती है वेसल और फाइसी से, क्वेश्चन बन सकता है। पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल C2 एंड फ्यूजोजेंथिन, ये पिगमेंट होते हैं। सेल वॉल सिलिका की बनी होती हैं और सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इजी है। उसके बाद आपको दूसरा पढ़ना है ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे को फियोफाइसी भी बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, प्रीवियसली इन एल्गे। पहले हम ब्राउन एल्गी को फाइलम एल्गी के अंदर रखते थे, बट ऐसा नहीं है, असल में ये प्रोटिस्ट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ब्राउन एल्गे इज इन द विच फाइलम, तो कभी भी टिक ब्राउन एल्गे को एल्गी में मत करना, ये एल्गी नहीं है। ब्राउन एल्गे क्या है, ब्राउन एल्गी जो होता है वो होता है आपका प्रोटिस्ट, ठीक है, फियोफाइसी। गोल्डन एल्गी जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स, तो डेस्मिड्स को भी पहले हमने एल्गी के अंदर रखा था, बट नाउ इट्स अंडर प्रोटेस्ट। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये CSI या नेट में भी पूछा गया था आपका 2 बार लगातार ये क्वेश्चन आया है, ऊ माइकिट्स के बारे में। आपका जो ऊ माइकिट्स है, आप जैसे मैं आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ऊ माइकिट्स। अब ये जो ऊ माइकिट्स है जिसको हम एग फंजाई बोलते हैं, ये पहले कहाँ था, फंजाई के अंडर था, बट जस्ट नाउ अभी कहाँ है, अभी इसको रखा गया है प्रोटिस्ट के अंदर। क्यों रखा गया है, इसमें एक बहुत सिंपल रीज़न है कि आपकी जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, बट इसकी जो ऊमाइकिट है इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, जस्ट लाइक प्रोटिस्टम, इसीलिए इसको प्रोटिस्ट के अंदर रखा गया है। बाकी और भी हैं, जैसे सेप्टा नहीं है इसमें, बहुत सारे करेक्टर नहीं है जो फंजाई वाले नहीं है इसके अंदर। ओके, अब इसको निकाल दिया गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड आपके लिए। स्टेमनोफाइल्स के अंदर के बाद आते हैं ए का मतलब एल्बोलेट्स। एल्बोलेट्स में आता है आपके डिनोफ्लेजिलेट्स। डिनोफ्लेजिलेट्स, अब डिनोफ्लेजिलेट्स होते हैं क्या हैं, तो ये सिम्बायोंट विद कोरल रीफ। अब कोरल रीफ आपको अभी सभी को पता होगा, एक एनिमल ही है, एक एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करता है, आप सभी को पता होगा, काफ़ी महंगे मिलते हैं, समुद्र के नीचे होते हैं। अब ये जो कोरल रीफ होते हैं ये भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, एजोला वगैरह, एटोल होता है एक आपका वो होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, एटोल होता है एक, काफ़ी महंगा तो आपका एटोल ही है, बाकी और कोरल भी है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कोरल के साथ, और ये सेलुलोजिक प्लेट इसके पास होती है। दूसरा होता है जूजेंथिन। जूजेंथे भी सिम्बायोटिक कोरल लीफ के साथ इनका भी म्यूचुअलिज्म है। ओके, उसके बाद है नोक्टुलिका, ये क्वेश्चन बन सकता है। नोक्टुलिका, आपका जो नोक्टुलिका है इसको हम कई बार रेड टाइड बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर हम सिलिएट्स की बात करते हैं तो सिलिएट्स में आ जाता है पैरामीसियम और वोटेसेला।
और कोई पूछ ले पैरामीशियम किसके अंदर आता है, तो एल्वोलिट्स के अंदर आता है पैरामीशियम। ओके, नाउ द थर्ड वन इज राइजेरिया। राइजेरिया में आते हैं एल्गी सिम्बायोट और एक्सेल फिलामेंट। एक्सेल फिलामेंट यानी ऐसे स्टार शेप का होता है ये, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है इनका राइजेरियंस का, कुछ खास नहीं इसके बारे में। अगर हम सुपर क्लास एक्सकेवेट्स के बारे में बात करें तो एक्सकेवेट्स के अंदर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज पैरावेस्लिडे। और पैरावेस्लिड्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या है? ट्राइकोनिम्फा एक टाइप का पैरासाइट है जो कि ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म का था। ओब्लिगेटरी मतलब उसको जरूरी है, डाइजेस्ट सेलोज। ओके, और ये देखो, ये टर्माइट्स, कॉकरोच, वुड हाउस, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये ट्राइकोनिम्फा एक इंसेक्ट पैरासाइट होता है। ओके, एक्सकेवेट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आप क्वेश्चन बन सकता है वो है ये, पहला है ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी, ट्राइपेनोजोमा गैमेंसिस एंड ट्राइपेनोजोमा रोडेंसिस। ये तीनों की तीनों एक डिजीज कोज करते हैं जिसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इनका जो वेक्टर है, वेक्टर ऐसा जो जो डिजीज कोज कर रहा है वो एक फ्लाई है जिसका नाम है ग्लोसिनिया पाल्पिस, जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से डिजीज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन फैला रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ट्राइपेनोजोमा ब्रोजी किस सुपर ग्रुप के अंदर आती है, तो याद रखना है एक्सकेवेट। ओके, नेक्स्ट है ट्राइपेनोजोमा क्रूजी, जिससे डिजीज होती है चैगाज डिजीज, और चैगाज डिजीज को फैलाता है ट्राइटोमाइन, जिसको हम किसिंग बग भी बोलते हैं। ये बेड बग की तरह ही होता है, बेड बग को ही कई बार किसिंग बग बोल देते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ द लेशमानिया डोनोवानी, ये जो लेशमानिया है ये डिजीज कोज करता है कालाजार, जिसको हम बोलते हैं लेशमैंसिस। और वेक्टर है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई आजकल कॉमन है, मतलब जैसे ना बरसात खत्म होती है, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो आपको सैंड फ्लाई दिखती है, सैंड फ्लाई। फिलोबोटोमस, ओके, बहुत जहरीला फीवर होता है इसमें, डेडली। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, इसमें जेनेटल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ये भी इसके अंदर आता है एक्सकेवेट के अंदर ही, तो याद रखना इसके बारे में। अब सुपर क्लास एक्सकेवेट्स के अंदर एक और रह गया, वो है यूग्लिनोजोआ। अब यूग्लिनोजोआ आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है यूग्लिनोजोआ? यूग्लिनोजोआ इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल्स। पढ़ा है यूग्लिना? ये मिक्सोट्रोपिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल आता है यूग्लिना, बोलवॉक्स और क्लिडोमोनास। यूग्लिनोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड होते हैं। वो फूड रिजर्व की बात करते हैं तो होता है पैरामाइलम। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, इसको भी याद रखना ना कि यूग्लिना के अंदर फूड रिजर्व क्या है, तो वो है पैरामाइलम। ओके, तो ये आज के लिए जनरल इंट्रोडक्शन था, और प्रोटेस्टा के बारे में ज़्यादा डिटेल में कभी आया नहीं है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट बाकी हैं, क्योंकि देखो इतना बड़ा सिलेबस, आप प्रोटेस्टा के से क्या पूछेगा, जितना पूछेगा प्रोटेस्टा से उतना इसमें सफिशेंट है, कहीं और आप जाने की जरूरत नहीं है। बाकी एक मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उसमें पढ़ लेना थोड़ा सा। बाकी आपके जाएंगे नेक्स्ट फाइलम जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, और उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए, आपके लिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो से लेकर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बाकी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।